Good morning. I Ramo Singh, SLA legal advisor, have today a very important topic of company law: criminal liabilities of directors and key managerial persons. Who are the key managerial persons and who are the directors? Now come to directors. Every company shall have a board of directors consisting of individuals as a director and shall have minimum 3 numbers in public companies, minimum 2 numbers in private companies, minimum 1 number in one person company. There are segmentation in directors also. An independent director in relation to a company means a director other than a managing director or whole-time director or nominee directors. Independent director, a person of integrity and possesses relevant expertise and experience of the field. जिस फील्ड की कंपनी है उसमें एक्सपर्टाइज होता है तो उनको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स नियुक्त कर लिया जाता है. नाउ कम टू KMPs. की मैनेजरियल पर्सन सच एज द CFO, CEO, CS जो अपॉइंटेड CS, MD plays a pivotal role in management and functioning of a company. The directors and KMPs attract criminal liability. Criminal liability attract करते हैं under the Companies Act 2013 by virtue of statutory liability and also under statute by virtue of the vicarious liability. Vicarious liability में भी statutory liability में भी इनको criminal liability इनकी फिक्स होती है. Now come to one by one हम देखते हैं. Corporate criminal liability can be defined as a crime. Corporate criminal liability can be defined as a crime which has been committed by individual or association of individuals who, for pursuing a common purpose or make business gain in course of their occupation, अपने occupation के दौरान में business gain के वो make business gain in course of their occupation commit such acts or omission करते हैं या छोड़ देते हैं. Whether it is for the benefit of the corporation or benefit of some individual, उसमें इनकी क्रिमिनल लाइबिलिटी फिक्स होती है. लाइबिलिटी डिपेंड्स ऑन द रोल वन प्लेस. जो डायरेक्टर कैसा रोल प्ले करता है इन द अफेयर्स ऑफ ए कंपनी एंड नॉट ऑन डिजिग्नेशन और स्टेटस बेस. स्टेटस और डिजिग्नेशन के बेस पे नहीं, किसने रोल प्ले किया वो भी. ए पर्सन नॉट होल्डिंग एनी ऑफिस और डिजिग्नेशन इन ए कंपनी आर देयर आर नो डिजिग्नेटेड KMPs मे बी लाइबल फॉर. वो लाइबल हो सकता है कैसे, मे बी लाइबल और अब नॉट बीइंग इन चार्ज ऑफ एनी कंपनी. नॉट बीइंग इन चार्ज ऑफ एनी कंपनी अगर उसकी वजह से भी हो रहा है तो वो जो मेन रिक्वायरमेंट ऑफ बीइंग इन चार्ज ऑफ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ ए कंपनी एट द रिलीवेंट टाइम, जो जैसा टाइम रहता है उसके हिसाब से. तो देयर आर नो designated KMPs may be liable if they satisfy that if he satisfies that he was involved in that criminal act. There are various statutes that do not recognize the difference between executive and non-executive director. जो executive director और non-executive director होते हैं उसमें कोई क्लियर डेफिनेशन नहीं दिया हुआ है. और कुछ ऐसे केस होते हैं जैसे चेक का केस है. चेक के केस में कंपनी के ऊपर लाइबिलिटी आती है तो सब के सारे डायरेक्टर्स को लाइबल कर दिया जाता है. तो देयर आर वेरियस इंस्टीट्यूट दैट डू नॉट रिकॉग्नाइज द डिफरेंस बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, देयर बाय सब्जेक्टिंग ऑल क्लासेस ऑफ डायरेक्टर्स टू द सेम लाइबिलिटी. फॉर इंस्टेंस में when an offense of check is dishonored in committed by the company under section 138 of negotiable CNI Act में 1881 में होता है तो punishment is imposed by virtue of vicarious liability under section 141 of the NI Act. NI Act में इनको punishment मिलता है. All directors of the company face incrimination under the section including independent directors who have no control over the everyday management of the company. जबकि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का कोई कंपनी के मैनेजमेंट में बहुत बड़ा रोल नहीं होता है. वो इंडिपेंडेंट होते हैं, वो एडवाइस करते हैं लेकिन वो भी इसमें जिम्मेदार होते हैं. द कंपनीज एक्ट 2013 कंटेम्पलेट 2 सेट्स ऑफ द क्रिमिनल लाइबिलिटी फॉर डायरेक्टर्स एंड KMPs. पहला क्या है,
द स्टेचुटरी लाइबिलिटी विच इज़ क्लियरली लेड डाउन इन द एक्ट, एक्ट में जो स्टेचुटरी लाइबिलिटी लिखी हुई है वो चाहे पनिशमेंट की हो, पेनाल्टी की हो, वो। सेकेंडली लाइबिलिटी अराइजिंग ड्यू टू ब्रीच ऑफ ड्यूटी ऑफ डायरेक्टर्स, अगर ब्रीच ऑफ ड्यूटी ऑफ डायरेक्टर्स भी है और की मैनेजरियल पोर्शंस का भी है तो मेंशन अंडर सेक्शन 166, ये उनके डायरेक्टर्स के लिए है, वो अंडर 166 उसमें भी। द कंपनीज एक्ट डिफाइंड द टर्म ऑफिसर हु इन डिफॉल्ट, द क्रिमिनल लाइबिलिटी इज इम्पोज्ड ऑन देम अंडर द ब्रॉड हेड ऑफिसर इन डिफॉल्ट। ऑफिसर इन डिफॉल्ट का एक सेक्शन ही है 2 क्लास सब क्लास 60। The legal action can also be initiated against the defaulting directors by the company on the ground that the directors owed a duty, क्या owed a duty, वो जिम्मेदारी रखते हैं अपार्ट फ्रॉम द कंपनी द शेयर होल्डर्स मिनिमम 100, किसी भी कंपनी के शेयर होल्डर्स 100 मिनिमम 100 इनके ऊपर सूट दाखिल कर सकते हैं और केस कर सकते हैं, क्रिमिनल लाइबिलिटी फिक्स करने के लिए कोर्ट जा सकते हैं। सेक्शन 166 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 मेंशन्ड अबाउट द फिड्यूशियरी का मतलब जिम्मेदारी के साथ, तो फिड्यूशियरी ड्यूटीज ऑफ द डायरेक्टर्स, इफ द डायरेक्टर टेक्स द अनड्यू एडवांटेज, कोई भी डायरेक्टर अनड्यू एडवांटेज लेता है, देन इट शैल बी हेल्ड लाइबल टू पे एन अमाउंट इक्वल टू द गेन टू द कंपनी, कंपनी को किसी कंपनी से कोई एडवांटेज लिया हुआ है, जितना गेन वो लिया हुआ है उतने गेन उस कंपनी को पे करना पड़ेगा, और दैट गेन एंड ही शैल बी पेबल टू पे फाइन विच में एक्सटेंड टू 5 लाख रुपीज़, 5 लाख रुपए तक की फाइन भी उसको देनी पड़ सकती है। वो जितना गेन किया है उतना तो देना पड़ेगा और इम्पोज किया जा सकता है फाइन को भी। अब आप समझते हैं कि कुछ सेक्शंस हैं कंपनी एक्ट में जो पनिशमेंट डिसाइड करते हैं। 447 है, सेक्शन 447 है पनिशमेंट फॉर फ्रॉड, कोई भी डायरेक्टर फ्रॉड करता है या कोई भी की मैनेजर पर्सन भी करता है तो भी 447 में पनिशमेंट है, पनिशमेंट फॉर फ्रॉड, ये केस जा सकता है। 448 में है, 448 का मतलब 448, 448 में पनिशमेंट फॉर फॉल्स स्टेटमेंट, किसी ने गलत स्टेटमेंट दिया हुआ है, गलत स्टेटमेंट हमारा गया हुआ, कंपनी का गया हुआ या डायरेक्टर का गया, वो सब चीज़ें। 449 पनिशमेंट फॉर फॉल्स एविडेंस देने पे पनिशमेंट है। 450 में पनिशमेंट वेयर नो स्पेसिफिक पेनाल्टी, जहाँ पे कोई स्पेसिफिक पेनाल्टी नहीं डिसाइड की गई है उस पर भी ये पनिशमेंट प्रोवाइड किया करता है। 451 पनिशमेंट इन केस ऑफ रिपीटेड डिफॉल्ट, किसी ने डिफॉल्ट पहले भी किया हुआ है फिर डिफॉल्ट कर रहा है, पहले ही वो गलत कर रहा है फिर अभी गलत कर रहा है तो उसको रिपीटेड डिफॉल्ट में उसको पनिशमेंट 451 में जाएगा। 452 पनिशमेंट फॉर रॉन्गफुल विथ होल्डिंग ऑफ प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी कंपनी की रॉन्गफुल विथ होल्डिंग है तो उस पर जो केस बनता है वो केस बनने में 452 में उसे पनिशमेंट का प्रावधान है। सेक्शन 260 जो ऑफिसर ऑन डिफॉल्ट का क्लास था, होल टाइम डायरेक्टर भी इसमें आ सकते हैं, KMPs भी जा सकते हैं, सभी लोग आ सकते हैं इसमें। 260 में उनको पनिशमेंट है। सेक्शन 34 क्रिमिनल लाइबिलिटी फॉर मिस स्टेटमेंट इन प्रॉस्पेक्टस जो दिया जा रहा है वो अनट्रू नहीं होना चाहिए, मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए, बहुत अट्रैक्शन में बनाने के लिए प्रॉस्पेक्टस में जो ना गलत चीज़ें दी जाती है उस पर भी सेक्शन 34 में पनिशमेंट है। जो लोग जिम्मेदार होंगे वो उन्हें जो ना पनिशमेंट मिलेगा, पेनाल्टी भी देनी होगी। और ये पेनाल्टी किस में जाएगी, ये पनिशमेंट किस में होगा, 447 में। 447 कौन सा था, फ्रॉड का था, फ्रॉड माना जाएगा। सेक्शन 53 प्रोहिबिशन इन ऑन इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट, कोई भी कंपनी या जो डायरेक्टर हैं या डायरेक्टर्स इन्वॉल्व हैं वो लोग जो है ना कोई किसी भी तरह का रिबेट या डिस्काउंट दे करके करते हैं तो उन्हें 5 लाख तक की पेनल्टी है, पनिशमेंट भी है, सजा इम्प्रिजनमेंट भी है। सेक्शन 68(11) पावर ऑफ द कंपनी टू परचेज इट्स ओन सिक्योरिटीज डिफॉल्ट इन कंप्लाइंग दिस सेबी रेगुलेशन, सेबी के रेगुलेशंस के डिफॉल्ट करने पर, उसके बात को नहीं मानने पर 68(11) में वो डिफॉल्ट में है अगर हैं तो पनिशमेंट वहाँ पे डिसाइड हुआ है 70 होगा पक्का। सेबी के रेगुलेशन को इसलिए मानना पड़ेगा, जो सेबी की गाइडलाइंस उसको मानना पड़ेगा। 71(11) डिफॉल्ट इन ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल एवरी ऑफिसर इन्वॉल्व विल बी फाइंड,
डिफॉल्ट इन ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल ने कोई ऑर्डर किया और किसी और डिफॉल्ट हो गया और उसका ऑर्डर का फॉलो अप नहीं हुआ तो उसमें जो लोग ऑफिसर इन्वॉल्व है उनको पनिशमेंट मिलेगा। सेक्शन 92(5) फेल्स टू फाइल एनुअल रिटर्न, अगर एनुअल रिटर्न दाखिल नहीं हो पा रहा है, कौन सा कब नहीं दाखिल हो पा रहा है, प्रेस्क्राइब्ड पीरियड में नहीं दाखिल हो पा रहा है, तो ऐसे डिफॉल्ट में 50,000 से लेकर के 5 लाख रुपए और इसमें 6 महीने तक की भी सजा है। अभी जो हमने और बताया जिसमें फ्रॉड व्रॉड उन सब में तो 3-3 साल तक की भी सजा है, 1 साल से लेकर 3-3 साल तक की सजा है। तो सजा सेक्शन 118(12) टेम्परिंग द मिनट्स ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ एनी मीटिंग, मान लीजिए बोर्ड की कोई मीटिंग हुई या किसी भी तरह की मीटिंग हो रही, कंपनी की मीटिंग हो रही, उसमें टेम्परिंग कर दिया गया, कुछ भी जोड़ घटा दिया गया, फलाना कर दिया, मतलब जो भी गलत कर दिया गया, टेम्पर कर दिया गया, उसको जो है ना प्रभावित कर दिया गया, तो उसमें ये 118(12) में सजा है। 1286 सब क्लास 6 है, डिफॉल्ट इन बुक्स ऑफ अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट का मतलब आप समझते हैं अकाउंटिंग बुक, उसमें कोई डिफॉल्ट किया जाता है, करा जाता है, मैनिपुलेशन किया जाता है, वो भी जो ना पनिशेबल है। 129 में मिस डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिया, जैसे आप देखते हो बहुत जब केस चल रहे हैं, बहुत कंपनियां ऐसी थी जिसमें बहुत बड़ा स्कैम हो गया था, वो उसी तरह से जैसे सत्यम उत्तम का है, अब आजकल भी कुछ केस चल रहा है, जब तक वो प्रूव नहीं होता पता नहीं लगेगा। ऐसे 129 में मिस डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 134 डिफॉल्ट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड बोर्ड रिपोर्ट, कोई भी बोर्ड की रिपोर्ट है या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिफॉल्ट होता है तो 129 में पनिशमेंट और पेनाल्टी है। 134 में डिफॉल्ट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बोर्ड हो गया। 167 में वैकेशन ऑफ ऑफिस ऑफ डायरेक्टर्स, कोई भी डायरेक्टर है उसका टेनर पूरा हो गया है या उसकी ऑफिस वैकेट हो गया है, उसकी एब्सेंट होने की वजह से हो गया है या उसके डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से हो गया है, उसके बाद भी बना हुआ है, तो उसमें 167 में उसे ही शैल बी पनिश्ड, एब्सेंट 184 में दिया गया है, ही शैल बी पनिश्ड फॉर 1 ईयर इम्प्रिजनमेंट एंड पेनाल्टी 1 लाख से 5 लाख। सेक्शन 185 लोन टू डायरेक्टर्स इन डिफॉल्ट, कोई बोर्ड की मीटिंग के एक्स्ट्रा से अलावा या बोर्ड या किसी जानबूझ करके कहीं किसी को लोन दे देना, डायरेक्टरों को ही लोन दे देना, उसमें अगर डिफॉल्ट है तो 185(2) सेक्शन 185 सब क्लास 2 में उन्हें पनिशमेंट है। सेक्शन 188(5) रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन विदाउट बोर्ड्स कंसेंट, बोर्ड की कोई कंसेंट नहीं है, किसी डायरेक्टर ने अपने रिलेटिव को कुछ भी जो है ना रिलेटेड ट्रांजेक्शन कर दिया है, वो भी 25,000 से लेकर 5 लाख तक की पेनाल्टी है और 1 साल की सजा है। सेक्शन 229 पेनाल्टी फॉर फर्निशिंग फॉल्स स्टेटमेंट, कोई फॉल्स स्टेटमेंट फर्निश कर रहे हो, म्यूटिलेशन कर रहे हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, हु ईवर के एम्प्लॉय डायरेक्टर्स आर एम्प्लॉई डस सो ही शैल बी पनिश्ड एंड पनिशेबल फॉर फ्रॉड, वो फ्रॉड 447, जैसा कि पहले हमने बताया 447 फ्रॉड में उसको 3 साल भी सजा हो सकती है और पेनाल्टी 1 लाख तक 1 लाख से 5 लाख तक की है। कुछ सेबी के जो ना कुछ केस हैं जिसमें कुछ प्राविधान डिसाइड हुए थे, तो उससे हमें थोड़ा रेफरेंस मिलने की संभावना है। तो आप देखिए, पहला एक केस है सेबी वर्सेस गौरव वार्ष्णेय का। द कोर्ट इन द अबव केस वाइल डीलिंग विद द इशू ऑफ वेदर द क्रिमिनल लाइबिलिटी ऑन द डायरेक्टर्स ऑफ ए कंपनी observed that such liability arises when the director was and responsible for the conduct of the company. Thus, liability largely arises out of the role played and not merely with the virtue of the holding of the position and designation. उसकी पोजीशन और डिजिग्नेशन पे का ही बेस नहीं लेकर के उस पर लाइबिलिटी निर्धारित की जाएगी, उसका रोल क्या था, उस रोल पे भी इस केस में दिया था, उसका रोल क्या था उस रोल के बेस पे होगा, ना कि उसकी पोजीशन के बेस पे होगा। लेकिन कुछ केस ऐसे हैं जिसमें कंपनी का डिफॉल्ट होता है तो सभी नपेंगे उसमें। पृथा बैग वर्सेस सेबी, in the above case a differentiation between the officer in default and the other remaining directors was made by the securities appellate tribunal, सेबी के ट्रिब्यूनल में ये the liability was imposed under section 260 of the Companies Act on finding that it was those who were officer in charge who were responsible for illegal act। जो illegal act हुआ था उस illegal act में जो ऑफिसर इन्वॉल्व थे उनको जो है ना उनको लाइबल किया गया था और उन्हीं को पनिशमेंट मिला, उन्हीं को जो ना पेनल्टी देनी पड़ी। इट इज़ फर्दर एनालाइज सेक्शन 149(2) ऑफ द कंपनीज एक्ट 149
class subclass 2 Act 2013, which states that liability can be imposed on independent directors for the act which is commissioned by the company. कंपनी कोई कमीशन कर रही है, कंपनी मीन्स पूरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मिलकर कोई डिसीजन लिया और उसके बाद वो कंपनी कर रही है, कोई भी क्रिमिनल एक्ट हो जाता है उससे, अंडर द नॉलेज एट्रीब्यूटेबल टू सच इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स थ्रू बोर्ड प्रोसेस. क्योंकि बोर्ड की जो मीटिंग होती है, उस बोर्ड की मीटिंग में वो डायरेक्टर भी रहते हैं, तो उनकी डिसेंट तो नहीं थी. अगर डिसेंट थी तो वो बच जाएगा, नहीं डिसेंट थी तो अगर वो डिसीजन लिया गया था उसके बेस पे कंपनी ने कोई फ्रॉड किया या कोई चीट किया या कोई बात हुई, तो उसमें सारे के सारे डायरेक्टर्स, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स सब फंसेंगे. Under the Companies Act 2013, strict penalties have been provided for acts that are so grave in terms of the non-compliance. However, it is argued that rarely we see that in cases where the directors are held accountable for criminal offences under company law, they are required to go imprisonment for maximum tenure. जो मैक्सिमम टेनर के लिए किसी भी डायरेक्टर को जो है ना पनिशमेंट मिल जाता है, वो चाहे ट्रिब्यूनल से मतलब कहीं से भी, मतलब कोर्टों से कहीं से भी उनको ऑर्डर हो जाता है इम्प्रिजनमेंट का, मैक्सिमम पेनल्टी जा रही है, मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट के लिए जा रहा है, तो उसमें कंपनी को कासस होना चाहिए कि ये बहुत बड़ा डिफॉल्ट है. ऐसे लोगों उन रिस्पॉन्सिबल लोगों को हटाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, हटा देना चाहिए. द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव मस्ट बी रिक्वायर्ड टू अटेंड एवरी बोर्ड. सबको एवरी बोर्ड मीटिंग को अटेंड करना चाहिए और ये माना जाता है कि वो अटेंड करते हैं. एब्सेंस फ्रॉम बोर्ड मीटिंग शुड बी एग्जेम्पशन. कोई एग्जेम्पशन हो सकता है लेकिन क्या है, कोई नाम नहीं है, कोई रूल नहीं है कि मैं एब्सेंट था. इट इज़ योर ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हैव द नॉलेज अबाउट द बोर्ड मीटिंग, व्हाट द डिसीजन वाज टेकन इन बोर्ड मीटिंग. The minutes of the board meetings should be detailed and provisions should be introduced. Meeting minutes to mandatory record dissenting opinion of any director of any would be crucial piece for record. अगर किसी कोई बोर्ड मीटिंग हुई है या किसी भी तरह की मीटिंग हुई है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई या किसी तरह से बोर्ड की मीटिंग हुई है, उस बोर्ड की मीटिंग में किसी डायरेक्टर ने XYZ किसी डायरेक्टर ने, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने अपनी डिसेंट दिया है, तो वो क्रूशियल जो ना एविडेंस हो जाता है. वो एविडेंस फ्यूचर के लिए लिया जाता है कि हाँ मैंने तो मना किया था. ये वो अपना दे सकता है, अपना एविडेंस दे सकता है कि आई वॉज नॉट एक्सेप्टिंग दैट वॉट एवर द डिसीजन बोर्ड हैज टेकन. ये न्यूली अपॉइंटेड डायरेक्टर्स इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स भी प्रोवाइडेड ट्रेनिंग. और इसमें ये रेमेडी के रूप में है. ये रेमेडी के 2-4 पॉइंट थे हमने बताए. तो जो नए अपॉइंट होते हैं, नए लोगों को ट्रेनिंग देना चाहिए, उनको एक्सपर्टाइज देना चाहिए, उनके कॉम्पिटेंसी डेवलप करने के लिए कुछ न कुछ कंपनी को करना चाहिए. मैं इस टॉपिक को क्लोज करने से पहले आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि जो लोग इसे देखते हैं, चाहे वो स्टूडेंट हो, एडवोकेट हो या कोई भी प्रोसिक्यूटर भी हो, कभी कभी प्रोसिक्यूटर्स को भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें जानने के लिए लगता है, तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं. और इसी तरह की मैं टॉपिक्स को जो ना सर्च करके लाऊंगा या किसी के डिमांड पे भी मैं, ये इट वाज ऑन डिमांड ऑफ सम ऑफिसर, दैट्स वाई जो ना आई मेड दिस topic, this video on this topic, the very crucial topic. Thank you very much.